plan your activity, I'll just suggest simply choose the areas where you would like to focus with your little child and then gather resources that will assist you in meeting those goals. Please don't drive yourself crazy overthinking the details, and I promise you that there is no wrong way to do this. The only thing we should be concerned is when we try a lot and we try to make it too much at once, overwhelming ourselves also and our child. So, my first piece of advice is keep it simple, keep it for the 3 year old. I like to focus on three areas mainly. The first one is phonics, maths, and tracing. Your goals for your little one may differ, but this will provide you with a good starting point. This serves as the framework for my lesson planning, and then I refer the books that will be my resources to cover these topics. I simply use OneNote, or you can use your personal day planner to jot down the three things you want to focus on. Our each day begins with our morning time, where we like to start with reciting our days of the week song. Then we do month of the year song, and finally we do our phonics and counting 1 to 10. These are all daily practice activities that we go through each morning, and then we walk through the worksheets and activities planned for each day. I like to keep activities as simple as possible, no complicated crafts or projects. I only list ideas that I know realistically be carried out in our day to day life, and I keep my list short and sweet, unless I need to make additional notes to trigger my memories regarding the details of a specific activities. Like on each day of a week, beside our daily three worksheet and our three hands on activities, we focus on various things. Like on Monday we focus on maths activity, Tuesday we will do something related to craft, Wednesday we will focus on activity related to phonics, Thursdays for motors, Fridays for baking and cooking, Saturday gardening, and Sunday I have specially kept for Bhagavad Gita, where we watch something or do something related to Bhagavad Gita. ना जिस तरीके से मैंने प्लान किया है, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने चीज़ों को लिस्ट आउट किया है, उसी तरीके से मैं अपने घर में मैंने एक एरिया बना के रखा है जहाँ पे मैं उनकी सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके रखती हूँ. लाइक मैथ्स की सारी एक्टिविटीज़ एक तरफ और फोनिक्स की एक्टिविटी एक तरफ, लॉजिक्स की एक्टिविटी एक तरफ. इस तरीके से मेरे पास करीब 5-6 बॉक्सेस हैं जिसमें उनकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़, उस बॉक्स से रिलेटेड पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं. फिर मुझे वहाँ से एक्टिविटी पुल आउट करके अपने बॉक्स में डाल के वो सब बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत इजी रहता है. आइए मैं बताती हूँ मैं वीकली लिस्ट किस तरीके से तैयार करती हूँ. अपना वीकली प्लान बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ. पहला कि मुझे अपनी एक्टिविटीज़ निकालने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए अपने रोज़ की बास्केट तैयार करने के लिए, क्योंकि दिस विल कॉज lack of motivation if it will be like too much pain to pull out activities every day. So जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं यूजुअली बहुत सिंपल होती हैं और मैं उनको किस तरीके से प्लान करती हूँ या किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, दैट आई विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो. बट फॉर नाउ मेरी इस तरीके से होता है. मंडे को जो चीज़ें मुझे करनी है, ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरीके से मैं लिस्ट कर लेती हूँ और मैं इसका प्रिंट आउट अपने कबर्ड के सामने लगा देती हूँ जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, सो दैट आई नो कि मैं कोई चीज़ स्किप नहीं कर रही. सेकेंडली, जब मेरे पास सिर्फ 3 वर्कशीट्स होती हैं, एक मैथ्स की, एक फोनिक की और एक ट्रेसिंग. इन वर्कशीट्स को करने के लिए मेरे बच्चों को 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है और उनको वर्कशीट करना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो मैं फोकस भी नहीं करती वर्कशीट पर. फिर उसके बाद जो मेरी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ चूज़ करने का है वो मैं प्री प्लान नहीं करती हूँ. वो मैंने अपने सोच के रखा है कि मंडे जस्ट लाइक मैथ्स है, मैथ्स को मैंने 5 उसमें डिवाइड किया है. कोडिंग, मेजरमेंट एंड नंबर रिकग्निशन, इस तरीके से 5 कैटेगरीज़ हैं. तो मैं उस कैटेगरीज़ के हिसाब से डेली एक्टिविटीज़ पुल करती हूँ. इसी तरीके से फोनिक्स में आई हैव लाइक स्टैक्ड ऑल द फोनिक्स एक्टिविटीज़ टुगेदर, सो आई विल गो एंड पिक वन फोनिक एक्टिविटी रैंडमली
इस तरीके से पिक करके मैं अपनी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा जो मेरी स्पेशल एक्टिविटी ऑफ द डे होता है, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो मैंने आपको दिखाया था, जिस तरीके से मैंने प्लान किया है, उसको मैं पहले से ही गैदर करके अपने पास तैयार करके रख लेती हूँ, ताकि जब मैं अपने बच्चों को बिठाने पढ़ाने बैठूँ तो मेरे पास सब सामान हो। अभी यहाँ पे मैं अपनी पूरे मंथ के जो भी मैंने अपने गोल्स बनाए हैं, मे का गोल बनाया है, उसके लिए उस टॉपिक को जो बुक्स कवर कर रही हैं, मैं यहाँ वो बुक्स गैदर करने की कोशिश कर रही हूँ, और फिर उनको देखूँगी, और उसमें जो लगेगा मुझे कि मेरे बच्चों के लिए इजी रहेगा, या मेरे बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे उसे करने के लिए, या दे विल लाइक टू डू इट, आई विल सेलेक्ट दोज वर्कशीट्स एंड आई विल मार्क इट फॉर द मंथ। एंड हर वीकली मैं इसी सेट ऑफ बुक्स में से अपनी वर्कशीट्स निकालती रहूँगी। ऐसा ही कुछ मैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के साथ भी करती हूँ। के बाद मैं डेली इन सब चीज़ों को अपने एक बास्केट में अरेंज करके रख देती हूँ, और ये मेरे को बहुत ईजी पड़ता है। थैंक यू।